Welcome to today's class. The name of topic is list. In this video, we are going to discuss about the list. What is list? Or we can say that what do you mean by list? How we create a list, how we update and modify list. So, in today's class, let's have a look on another data type that is list. So let's start the class. A list represent a group of element. Student, list is a sequence of element. It is a data type. Means it consists a sequence of element, or we can say that a multiple elements, but in different data type. So we can combine the numeric values as well as the string values as well as complex value, and everything we combine and form list. स्टूडेंट लिस्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है. लिस्ट आर वेरी सिमिलर टू array, but there is a major difference. An array can store only one type of elements, whereas a list can store different type of elements. स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है जिसे एरे कहते हैं. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. मीन्स एरे में भी एलिमेंट्स स्टोर होते हैं लेकिन उनका डेटा टाइप क्या होता है, सेम. वेरस अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में भी मल्टीपल एलिमेंट को हम कलेक्ट करते हैं या स्टोर करते हैं, बट उनका डेटा टाइप क्या होता है, डिफरेंट होता है. आफ्टर दैट लिस्ट आर म्यूटेबल, सो वी कैन मॉडिफाई इट्स एलिमेंट. मीन्स लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, तो हम इसके एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं. स्टूडेंट, वी हैड ऑलरेडी सीन द म्यूटेबल और immutable data type. We can easily modify the element of mutable data type. A list can store different types of element which can be modified. लिस्ट म्यूटेबल होती है तो इसके एलिमेंट को या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं. लिस्ट आर डायनेमिक विच मीन्स साइज इज नॉट फिक्स्ड. डायनेमिक मीन्स रन टाइम पे अगर हमको इसके एलिमेंट को इंक्रीज करना हो या फिर डिक्रीज करना हो, इसका साइज कोई फिक्स नहीं होता है. इसीलिए लिस्ट क्या होती है, कोई फिक्स्ड साइज की नहीं होती. स्टूडेंट, डायनेमिक का मीनिंग यही होता है कि हम रन टाइम पे लिस्ट में एलिमेंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. आफ्टर दैट लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट. मीन्स जितने भी एलिमेंट होते हैं लिस्ट में उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ऑल द एलिमेंट ऑफ लिस्ट रिप्रेजेंट इन स्क्वायर bracket. Student, this is most important because if we use this square bracket we call it list. If we use parenthesis, that is called tuples. If we use this curly bracket we call as a dictionary. So everything there is a specific meaning. So we must be very careful while representing the elements. If you represent element in the parenthesis, it will be considered as tuple. If you represent element in curly braces, it will be represent as a dictionary. It is not a list. So for every representation that is most important, so all the element of list must be represented using square bracket. Now, how to create list? Student, creating a list. A list is similar to an array that consists of a group of elements or item. Student, list को कैसे किया जाता है in Python? The syntax is as follows. List name equal sign square bracket, after that element 1 comma element 2 up to so on square bracket close. So we have to represent all the elements in between square bracket, separating with the comma. The student example, a is equal to in a square bracket 10 comma 20 comma minus 50 comma 21.3 comma in a single code giki show. मीन्स ये एक स्ट्रिंग है जो हमने एज अ लिस्ट आइटम लिया है और इन सभी एलिमेंट्स को हमने यूजिंग
कॉमा से सेपरेट करते हुए स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन किया है। तो ये आपका क्या क्रिएट हुआ, लिस्ट। और ये पूरा लिस्ट किस में जा रहा है, आपके लिस्ट का नाम क्या है, ए। स्टूडेंट पाइथन में डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट यूज की जाती है। नाउ फर्स्ट लिस्ट इज द एम्प्टी लिस्ट। हाउ वी क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट? स्टूडेंट, एम्प्टी लिस्ट इज इक्विवेलेंट ऑफ जीरो, and like them it is also has truth values as false. Then you can also create an empty list as syntax is equal to list name is equal to square bracket, means लिस्ट नेम इक्वल का साइन लगा के आप स्क्वायर ब्रैकेट में एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं करेंगे, देन आपकी कौन सी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, एम्प्टी लिस्ट। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। पाइथन में डिफरेंट टाइप की लिस्ट यूज की जाती है। फर्स्ट एम्प्टी लिस्ट वी हैड ऑलरेडी सीन इट। आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, मींस ऐसे लिस्ट जिसमें हम सिर्फ इंटीजर एलिमेंट लेते हैं। आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंड फ्लोट, मींस इंटीजर्स एलिमेंट के साथ साथ कौन से एलिमेंट भी यूज किया है यहाँ पे, फ्लोट मींस डेसिमल। आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, मीन्स ऐसे लिस्ट बनाना जिसमें सिर्फ कौन सी वैल्यू हो, ओनली स्ट्रिंग वैल्यू। एज यू नो, स्ट्रिंग मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ मिक्स्ड वैल्यू। So student, this is a one more list which can I have all the different elements, different data types. This is the numerical, this is the string, this is float point. आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स जिसमें सिंगल कैरेक्टर का यूज किया है वो लिस्ट भी यहाँ क्रिएट की गई है। इंडेक्स ऑफ द लिस्ट, एन इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द पोजीशन नंबर ऑफ एन लिस्ट एलिमेंट। द इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 onwards and return inside square braces। लिस्ट में इंक्लूडेड जितने भी एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन का पता लगाने के लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विथ 0 पोजीशन, मीन्स अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं a इज इक्वल टू इन अ स्क्वायर ब्रैकेट 10, 20, -50, 21.3, की शोज, ये जो एक स्ट्रिंग ली है, आफ्टर दैट स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया है। यहाँ पर जो सबसे पहली पोजीशन पर 10 लिया है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 होता है, मीन्स ऑलवेज इंडेक्सिंग स्टार्ट की जाती है 0 से। स्टूडेंट, इसे हम एक इंडेक्स टेबल से समझ सकते हैं। लिस्ट के जितने भी एलिमेंट हैं वर्टिकल लाइन में शो हुए हैं, उनके जस्ट सामने उनका इंडेक्स नंबर शो हो रहा है, मीन्स जितने भी एलिमेंट हैं उससे n-1 उसका इंडेक्स होता है, मीन्स देर आर 5 एलिमेंट इन द लिस्ट, देन इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 to 4। स्टूडेंट, हम इसे इस टाइप से भी समझ सकते हैं। ए, द नेम ऑफ द लिस्ट, तो फर्स्ट एलिमेंट को इंडिकेट करता है विद द इंडेक्स नंबर 0। नाउ ए ऑफ 1 मीन्स फर्स्ट इंडेक्स से उस पर कौन सी वैल्यू है 20, आफ्टर द सेकेंड पोजिशन पे कौन सी वैल्यू -50। ऐसे ही जितने भी एलिमेंट इस लिस्ट में बिलोंग करते हैं वो सभी ए के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। स्टूडेंट, लिस्ट को बॉटम टू अप भी इंडेक्सिंग की जा सकती है। बॉटम से स्टार्ट होता है मीन्स -1 से, और अप टू कहाँ तक जाएगा, जहाँ का लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है, मीन्स यहाँ पर -1, -2, -3, -4 एंड -5 इंडेक्सिंग की है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, -1 से एंड एंडिंग विथ -5 से बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहा जाता है। जिसमें स्टार्टिंग इंडेक्सिंग की -1 से होती है और एंडिंग जो लास्ट एलिमेंट है मीन्स -1, -2 ऐसे इंक्रीज होते जाता है। स्टूडेंट, जितने भी लिस्ट के एलिमेंट हैं उससे हमेशा इंडेक्सिंग n-1 होती है, मीन्स अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो इंडेक्सिंग n-1 मीन्स 5 - 1 इज इक्वल टू 4 तक इंडेक्सिंग होगी, और अगर हम रिवर्स करते हैं तो -1 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जाएगा, -5। हाउ वी एक्सेस एंड मॉडिफाई लिस्ट एलिमेंट? Student, as mentioned, the individual elements of a list are accessed through their indices.
Now consider following example. Here list name A and the elements are 10, 20 and up to so on. Now अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसका जो इंडेक्स नंबर है वो क्या होगा 0. देन ए ऑफ 0 पे हमको कौन सा एलिमेंट मिलेगा 10. तो 10 को एक्सेस करने के लिए हम उसके इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं. स्टूडेंट हम एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन अगर हमें एक्सेस की गई वैल्यू को प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे इन अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मीन्स print a of 0, after that print a of 1, print a of 2, print a of 3, print a of 4. Means there are 5 elements present in the list but indices क्या होंगे उसके 0 to 4. अभी हमें इनको एक्सेस करने के साथ अगर प्रिंट करना है that's the reason we use your print statement. After that, modifying or updating elements. Student, in a previous video, we had seen that list is a mutable data type. Means we can modify its element. Student, updating element or modifying element possible है list में. तो lists are mutable, so we can modify its element. Here, one list is present, the name of list is A. Now in the second position index number is 1. अगर हमें उसी प्लेस पे चेंज करके 40 इंसर्ट करना हो तो हम A of 1 is equals to क्या लिखेंगे 40. Then your list will be modified. Now next time you will run that list, then in place of 20 you got 40 element. So we can modify the list element with the help of their index value.